કોણે કોણે? રથયાત્રામાં. ઓકે, આ વખતે ની રથયાત્રામાં આપણે બધા બહુ જ ઉત્સાહથી, એટલો આનંદ આવે એને રથયાત્રામાં. જેને જેને ભાગ લીધો હોય ને એને ખબર છે. આ વખતે આપણે બધા એમાં હિસ્સેદારી કરશું, હે ને? અગાઉ પણ ઘણી બધી સેવા હશે, અને એ સેવા બધાને પ્રાપ્ત થતી નથી. જેને ભગવાન પસંદ કરે ને કે આ વ્યક્તિ પાસેથી મારે સેવા લેવી છે, હે ને, તો આપણે બધા જ મળીને ભગવાનનો જે રથ છે ડેકોરેશન કરવાની, મંદિરને શણગારવાની, મંદિરનું માર્જન કરવાની, હે ને, આ બધી જ સેવાઓ આપણે બધા સાથે મળીને કરીશું. તો જ્યારે પણ ગ્રુપમાં મેસેજ આવે તો અચૂક સમય કાઢીને પધારવા વિનંતી છે બધાને. તો આજે બહુ જ સુંદર ટોપિક છે, મારે અને તમારે બધાએ સમજવા જેવો અને શીખવા જેવો, હે ને, કે ગૃહસ્થ ધર્મ એટલે શું છે. આપણે ગૃહસ્થ જીવનને બહુ સામાન્ય લઈ લઈએ છીએ કે ભાઈ ગૃહસ્થ જીવન એટલે શું? લગ્ન કરીને સાથે રહેવું ને જેમ તેમ કરીને જિંદગી પૂરી કરવી. આપણા માટે આ ગૃહસ્થ જીવન છે. પણ હકીકતે ગૃહસ્થ જીવન એ બહુ મોટી જવાબદારી છે, અને સૌથી ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવા માટે જો કોઈ વર્ણ હોય, કોઈ આશ્રમ હોય, આશ્રમ, તો એ છે ગૃહસ્થ આશ્રમ. તો આજે આપણે જોઈશું ગૃહસ્થ ધર્મ વિશે. આમાંથી લગભગ બધા જ ગૃહસ્થીઓ છીએ અથવા ગૃહસ્થીઓ થવાના છીએ, હે ને? કે કોઈ બ્રહ્મચારી છે આમાંથી બનવાનું છે? શું કહો છો? તો ગૃહસ્થ જીવન એટલે અહીંયા શ્રીમદ ભાગવતમના 7મા સ્કંધમાં 14મા અધ્યાયમાં કહે છે કે ગૃહસ્થ જીવનમાં પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપાય શું છે. પણ એ પહેલા આપણે જોઈએ કે ગૃહસ્થ જીવનની શરૂઆત કઈ રીતે થાય છે. અને ગૃહસ્થ જીવન એટલે ખ્યાલ છે ને, મેરિડ લાઈફ. સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ કે કેટલા વર્ણો અને કેટલા આશ્રમ હોય છે. આ એક આશ્રમ છે, ગૃહસ્થ આશ્રમ. શું કહેવાય છે એને? ગૃહસ્થ આશ્રમ. તો ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં 4થા અધ્યાયમાં કહે છે કે ચાતુર્વર્ણ્યમ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગશ. શું કહે છે ભગવાન? કે ચાતુર્વર્ણ્ય, આ 4 વર્ણોની મેં સ્થાપના કરી છે. ક્યાં 4 વર્ણો ખબર છે કોઈને? 4 વર્ણો. હા, એક્ઝેક્ટ. તો માતાજી માટે એકવાર 3 વાર હરિબોલ બોલીએ. હરિબોલ, હરિબોલ, હરિબોલ. તો 4 વર્ણો છે. એ છે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. બરોબર? તો ભગવાને આની રચના કરી છે. શા માટે? એટલા માટે કે સુવ્યવસ્થિત રીતે સમાજની જે વ્યવસ્થા છે ચાલી શકે. એટલા માટે ભગવાને આ વ્યવસ્થા કરી છે 4 વર્ણોની, અને સાથે સાથે 4 આશ્રમોની વ્યવસ્થા કરી છે. ખ્યાલ છે કોઈને 4 આશ્રમ ક્યાં ક્યાં? હા, પણ એને બાળ આશ્રમ ને શું કહે છે? બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ. શું કહે છે? બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ. એટલે કે 1 થી લઈને 25 વર્ષ સુધી મનુષ્ય બ્રહ્મચર્ય જીવન વ્યતીત કરે છે. વૈદિક પ્રણાલી પ્રમાણે, અત્યારે તો એવું કઈ થતું નથી, પણ વૈદિક સિસ્ટમ પ્રમાણે જો જોઈએ તો 1 થી 25 વર્ષ સુધી, એટલે કે જ્યાં સુધી લગ્ન ન થાય ત્યાં સુધી શું છે? બ્રહ્મચર્ય જીવન હોય છે, સ્ત્રીઓ માટે અને પુરુષો માટે, બંને માટે. પછી છે 25 થી 50 વર્ષ સુધી શું છે? ગૃહસ્થ જીવન. અને જો વ્યક્તિ ચાહે, પુરુષો,
તો એ બ્રહ્મચર્ય આશ્રમને આગળ વધારી શકે. એટલે કે ઓકે, એટલે કે મેરિડ लग्न नहीं करीने, है ना, विवाह नहीं करके वो क्या कर सकती है, क्या कर सकते हैं पुरुष, वो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही आगे बढ़ सकते हैं. लेकिन स्त्रियों के लिए शास्त्र ये आदेश नहीं देते कि वो अनमेरिड रहे, है ना. स्त्रियों को शास्त्रों में आदेश है कि स्त्रियों को हमेशा किसी न किसी के आश्रय में रहना चाहिए. जैसे कि जब तक उसका विवाह नहीं होता तब तक उसको माता पिता के आश्रित रहना चाहिए. हिंदी समझ पा रहे हो सब लोग? क्योंकि आज कोई ऐसा भक्त है जो गुजराती नहीं समझ सकता, इसलिए हम हिंदी में क्लास लेंगे, है ना. चलेगा ना सबको हिंदी में? तो स्त्रियों के लिए जब तक वो विवाह नहीं कर लेती तब तक वो माता पिता के आश्रय में रहेगी, उसके अंडर में रहेगी. जब वो विवाह कर लेती है उसके बाद पति के आश्रय में, उसके अंडर में रहेगी. और अगर ऐसा होता है कि उसका पति की हयाती नहीं होती है तो अगर बच्चे यानी कि पुत्र अगर बड़े हो गए हैं तो उसके आश्रय में, हरि बोल, उसके आश्रय में, अथवा तो उसके माता पिता के आश्रय में रहे, है ना. हरि बोल. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. आने लई लेजो, पासे बेसाड़ी लेजो. बेसी जा बेटा. ओके. तो एवी रीते ऐसे उसको रहना चाहिए स्त्रियों को, क्योंकि स्त्रियों के लिए ये छूट नहीं है कि वो स्वतंत्र रहे, है ना. वैसे सब स्वतंत्र है. अभी हम आगे देखेंगे कि गृहस्थ जीवन में स्त्री और पुरुष दोनों स्वतंत्र है और एक तरह से दोनों बंधन में भी है एक दूसरे, है ना. तो यहाँ पे दूसरा जो आश्रम है वो है गृहस्थ आश्रम. तीसरा आश्रम क्या है? वानप्रस्थ आश्रम. यानी कि 50 साल के बाद बच्चे बड़े हो गए हैं तो उसको घर की या सब जो जिम्मेदारी है वो सौंप के क्या करना है? वानप्रस्थ आश्रम, यानी कि वन में जाकर 100% भगवान का नाम स्मरण करना है. लेकिन अभी तो कहाँ जाएंगे वन में, होगा क्या? पहले होता था ऐसा कि तप करने के लिए वन में जाते थे, लेकिन अभी तो ऐसा हो नहीं सकता. तो क्या करना है? सब कुछ छोड़ देना. सब कुछ यानी कि जो है ना, ये मेरा है, ये मेरा रूम है, ये मेरी गाड़ी है, सब बच्चों का है. हमारा क्या है? एक ही है, भगवान, वही हमारा है ना. तो ये घर गृहस्थी में से जो आसक्ति है वो छोड़ के 100% कहाँ पे लगानी आसक्ति? भगवान में या भगवान की सेवा, है ना. और आगे आता है संन्यास आश्रम, जो 75 साल के बाद संन्यास भी ले सकते. लेकिन अभी का जो रेशियो है मनुष्य का जीवन, वो तब तक तो हम हरिबोल हो चुके होंगे 3 आश्रम के बाद, है ना. तो ये 3 आश्रम है जिसका हमें पालन करना है. तो जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों का कुछ अलग अलग कार्य है समाज में व्यवस्था के लिए. तो ब्राह्मण का क्या कार्य है? उसका कार्य है कि वेदों का पठन पाठन करना, है ना. वेदों को पढ़ना और दूसरों को, दूसरे जो 3 वर्ण है, कौन से है? वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, तीनों को वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान देना. बराबर है. क्षत्रिय को क्या कर्तव्य है? और ब्राह्मण किस गुण में स्थित है? सत्व गुण. ब्राह्मण सत्व गुण में होते हैं और सत्व गुण में होते हैं वही ब्राह्मण है. क्योंकि भगवान ने क्या बताया? गुण कर्म विभाग. गुण और कर्मों के आधार पर ये 4 विभाग बनाए, नहीं के जन्म के आधार पर.
अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है लेकिन उनके कर्म और उनके गुण अगर ब्राह्मण के नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाता, भले उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। अगर कोई क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है लेकिन उसमें क्षत्रिय वाले कोई गुण नहीं है तो वो क्षत्रिय नहीं है। समझ पा रहे हो? तो इसलिए भगवान बताते हैं कि गुण कर्म विभाग, गुण और कर्मों के आधार पर ये विभाग ये है। मैं तो क्षत्रियों का कर्म है कि वो समाज के और तीन यानी कि ब्राह्मण, वैश्य और शूद्रों की रक्षा करें, है ना। क्षत्रिय यानी कि राजा महाराजा क्षत्रिय, तो उसका कार्य क्या था? प्रजा की रक्षा करना। सैनिक, है ना। अभी अभी कौन क्षत्रिय है? हाँ, पुलिस वाले, वो क्षत्रिय के, मिलिट्री पुलिस, है ना, वो क्या है? क्षत्रिय है। तो हमको भी उसको सहयोग देना चाहिए। और तीसरा जो है वैश्य, है ना, उसका क्या कार्य है? तो उसका कार्य है खेती पशुपालन, यानी कि समाज को जिस चीजों की जरूरत है ना। ब्राह्मण क्या करेगा? वेदों का पठन पाठन करेगा। क्षत्रिय समाज की रक्षा करेगा। तो यहाँ वैश्य क्या करेगा? क्योंकि समाज को जो जीवन जरूरियात की जो चीजें हैं उसका उत्पादन करना और उसको वितरण करना, है ना। यानी कि खेती और पशुपालन, पहले तो यही चीजें होती थी जरूरियात के लिए, लेकिन अभी तो मोबाइल ये वो कितनी जरूरतें हैं हमारी, हमको भी मालूम नहीं होगी कि हमारी कितनी कितनी जरूरत है ना। आप सोचो कि सुबह से लेके शाम तक हम कितनी चीजों के आदी बन गए हैं कि उसके बिना हमको नहीं चलता। पहले खेती और पशुपालन दो ही होते थे, तो क्या होता था? पशुपालन, उसको उससे हमको दूध हुए और गाय का गोबर, गाय और बैल का गोबर से उसको उसका खातर बनता था और उससे उस खातर से जमीन में अच्छा अन्न उगता था और उस अन्न से हमारा पोषण होता था। यही दो चीज की जरूरत थी, खेती और पशुपालन। लेकिन अभी तो बहुत बहुत फैक्ट्रियां ये वो होता है। तो ये है वैश्यों के कर्म। और वैश्य किस गुण में होते हैं? रजोगुण और तमोगुण। क्षत्रिय रजोगुण में होते हैं, राजसिक, है ना, आधिपत्य, स्वामित्व। और वैश्य क्या होते हैं? रजोगुण और तमोगुण के मिश्रित भाव में होते हैं। और आता है शूद्र। तो शूद्र का क्या कार्य है कि समाज के जो और तीन वर्ग है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनकी सेवा करना, छोटी मोटी। एक तरीके से सब सेवा ही कर रहे हैं। ब्राह्मण भी तीनों वर्णों को शास्त्र का पठन पाठन कराने की सेवा करते हैं। क्षत्रिय समाज को सुरक्षित करने की सेवा करते हैं। तो वैसे ये जो शूद्र वर्ण है वो भी समाज की छोटी मोटा कार्य करके सेवा करते हैं। इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। समझ पा रहे? लेकिन गुण और कर्मों के आधार पर उसका विभाजन किया गया। और ये चारों वर्ण और ये चारों आश्रम, है ना, तो ये 8 चीज जो है उस आठों में से किसी में से भी भगवान की प्राप्ति हो सकती। कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है कि ये वर्ण ही भगवान की प्राप्ति कर सकेगा। माता जी हरि बोल। भले वो इधर उधर घूमती है, पीछे खेलती है, उसको खेलने दो, कोई दिक्कत नहीं। पीछे पीछे खेलने दो, आगे सबको डिस्टर्ब होगा। हाँ, पीछे अभी। तो कोई गुण और कर्म ऐसा नहीं है कि भगवान की प्राप्ति नहीं करवा सकेगा। आप चाहे किसी भी वर्ण में हो या किसी भी आश्रम में हो, है ना, सभी में से भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण लोग ही भगवान की प्राप्ति करेंगे, शूद्र नहीं करेंगे। नहीं, शूद्र भी करेंगे, ब्राह्मण भी करेंगे, है ना, सब लोग कर सकते हैं। लेकिन ये
गृहस्थ आश्रम क्या है और क्यों है और उसका उद्देश्य क्या है, ये आज हम समझेंगे। तो गृहस्थ आश्रम है कि अगर जो व्यक्ति अपना ब्रह्मचर्य आश्रम आगे नहीं ले जा सकता तो वो गृहस्थ आश्रम में एंटर हो सकता है। उसमें कोई प्रॉब्लम वाली या उसमें कोई वो बात नहीं है, है ना। तो जब कोई लड़का या लड़की गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो उसको क्या चाहिए होता है, क्यों प्रवेश करते गृहस्थ आश्रम, लड़का और लड़की, लड़की को क्या चाहिए और लड़के को क्या चाहिए। तो लड़के को चाहिए ऑथोरिटी, यानी कि स्वामित्व, है ना। लड़का अगर शादी करता है तो क्या जताएगा, स्वामित्व जताएगा, है ना, कि नहीं अभी तुमको मेरे अंडर में ही रहना है और रहना भी चाहिए। दूसरा, उसको कंफर्ट चाहिए, लड़के को क्या चाहिए, कंफर्ट यानी आराम, कि अभी क्या है, अभी तो शादी कर ली है तो छोटे मोटे काम जो पहले मैं करता था वो मेरी वाइफ करेगी, है ना, मेरी सेवा करेगी मेरी वाइफ। और तीसरा है जातीय जीवन, इंद्रिय तृप्ति, है ना। तो ये तीन चीजों के आधार पर मुख्यतः अभी होता है। और सामने लड़कियों को क्या चाहिए, तो उसको चाहिए प्रेम, है ना, प्रेम चाहिए कि अगर मैंने शादी की है, मैं अपना सब कुछ छोड़ के आई हूँ इस व्यक्ति के लिए, तो वो व्यक्ति मुझे प्रेम करना चाहिए और केयर करना चाहिए। केयर यानी कि मेरा ध्यान रखेगा, है ना, मेरा ध्यान रखना चाहिए और मुझ पे ध्यान देना चाहिए, अटेंशन, है ना, मुझ पे उसका अटेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी शादी कर ली तो बाद में पूरा अटेंशन अपने कामकाज पे ही है लड़के का, कि नहीं नहीं घर पे तो कुछ ध्यान ही नहीं है, कि अभी शादी ब्याह करके लाए हैं तो ये तो जी लेगी अपने आप, ये घर में बाकी सब लोग तो है ही ना, माता पिता है, भाई बहन, ये सब है ही, तो उसके आधार पे नहीं, ऐसा नहीं है। अटेंशन भी उसको चाहिए कि नहीं ये जो मेरे हस्बैंड है मुझ पे उसका ध्यान होना चाहिए, है ना। ये तीन चीज सही है कि नहीं है, सही है ना, यही चाहिए होता है ना अभी, कि नहीं है। लड़कों को क्या चाहिए, स्वामित्व चाहिए, थोड़ा बहुत आराम चाहिए, कंफर्ट चाहिए और इंद्रिय तृप्ति चाहिए। तो लड़कियों को भी ये चाहिए। और लड़कियों को क्या चाहिए, सिक्योरिटी, सिक्योर, है ना। किसके आधार पर सिक्योरिटी मिलेगी उसको, उसके हस्बैंड के आधार पर। समझ पा रहे हो, अगर हस्बैंड नहीं होगा, अकेली लड़की जी रही होगी तो क्या वो ठीक तरह से जी पाएगी, नहीं जी पाएगी, है ना। क्योंकि उसको शादी करने से उसको क्या मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, उसको रक्षण मिलता है ना। तो इसीलिए ये गृहस्थ आश्रम है अभी, और आगे हम देखेंगे सिर्फ इसीलिए नहीं है, आगे क्या करना है गृहस्थ जीवन में, ये तो है ही, लेकिन और आगे क्या है। तो गृहस्थ जीवन में ये तो हो गया कि उसको चाहिए क्या, लेकिन अभी आएगा कि उसके पास होना क्या चाहिए, स्त्रियों के पास क्या होना चाहिए और पुरुषों के पास क्या होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि एक स्त्री को कैसे घर गृहस्थी में रहना है, उसके पास कैसे कैसे गुण होने चाहिए, है ना। बाद में जेंट्स लोगों को भी देखेंगे, लेकिन लेडीज फर्स्ट, है ना। तो स्त्रियों की एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है एडजस्टिंग नेचर, एडजस्ट कर लेती है। पुरुष उतना एडजस्ट नहीं कर लेता करता जितना स्त्रियां एडजस्ट करती है ना। करती है कि नहीं करती है, देखो सब कुछ छोड़ के आई है, नया घर है, नया वातावरण है, नए लोग है, नए थोड़े बहुत रीति रिवाज है ना, तो फिर भी वो एडजस्ट हो जाती है, एकदम हो जाती है कि नहीं। अगर इस तरफ से अगर ऐसा एक गांव ऐसा है दुनिया में जहां
शादी के बाद जो लड़का है वो शिफ्ट होता है, लड़की शिफ्ट नहीं होती है ना, है ना, अपने यहाँ कुछ है। तो अगर मान लो कि हमारे साथ ऐसा होगा तो क्या होगा, हम अपना सब कुछ छोड़ के जाएंगे क्या सामने वाले पक्ष में? अगर जाएंगे भी तो क्या होगा, है ना, सोचने लायक चीज है। हम उतना एडजस्टेबल नहीं है जितना लेडीज लोग। तो ये क्वालिटी होनी चाहिए, एडजस्टेबल होने की क्वालिटी स्त्री में होनी चाहिए। दूसरा है सेक्रीफाइस, यानी कि बलिदान, त्याग। कुछ भी होता है तो वो सेक्रीफाइस कर लेती है, बलिदान दे देती है कि चलो कोई बात नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है ना, अपने हिसाब से होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। करते हैं ना कि नहीं करते हैं लोग? करते हैं, है ना, स्त्रियां सेक्रीफाइस होती है। और तीसरी क्वालिटी है लेट गो करने का नेचर। गलती है या नहीं है, फिर भी चलो ठीक है, चलो आप जो कहें। तो और इसका एक और भी गुण है सहनशीलता। स्त्रियां सहनशील होती है, पुरुष इतने सहनशील नहीं होते हैं, है ना। तो ये स्त्रियों में क्वालिटी होनी चाहिए, एडजस्टेबल नेचर, लेट गो करने की भावना, सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान, त्याग की भावना, और सबसे कलयुग में सबसे ज्यादा अगर कुछ होना चाहिए ना तो वो है सहन शक्ति, है ना, वो स्त्रियों में होनी चाहिए। पुरुषों में भी होनी चाहिए, लेकिन स्त्रियों का वो क्या बोलते हैं, कुदरती गुण है, नेचुरली गुण है स्त्रियों का सहन शक्ति, है ना। और इसीलिए पृथ्वी सबसे सहनशील कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी सबसे सहनशील है। कैसे? हम उसके ऊपर रोज चलते हैं, कुछ गंदा कचरा या मल त्याग करते हैं, मूत्र सब कुछ पृथ्वी के ऊपर करते, कितनी सहनशील है ना। गाड़ी लेके जाते हमारे ऊपर किसी ने थूक दिया तो हम इतने सहनशील है क्या? लड़ाई झगड़े पे उतर आएंगे कि क्या तुम ध्यान रख के तो ये करो, ये वो, होता है क्या नहीं? हम सहनशील नहीं होते, लेकिन पृथ्वी इतनी सहनशील। तो स्त्रियां भी सहनशील होती है। तो सामने पुरुषों का क्या है क्वालिटीज? पुरुषों की क्वालिटी है जवाबदारी पूर्वक कार्य करना, यानी कि वो जवाबदार बनते हैं, है ना, कुछ भी घर की जिम्मेदारी लेते हैं, है ना। स्त्रियों को तो क्या है कि बताए ये लेके आना, लेकिन कैसे लेके आएंगे, कहाँ से लाएंगे, कितना धन, वो तो इन लोगों को देखना है ना। तो जवाबदारी निभाते हैं पुरुष, निभाते हैं कि नहीं? बच्चों की जवाबदारी, पत्नी की जवाबदारी, घर गृहस्थी की जवाबदारी, माँ बाप की जवाबदारी, सबको संभालना पड़ता है ना। तो पुरुष का एक गुण है वो जवाबदारी स्वीकार करता है। दूसरा गुण है निर्णय शक्ति, वो निर्णय ले सकता है, कुछ भी बड़े निर्णय लेना है सबको मिलकर लेना चाहिए, लेकिन फाइनली अथॉरिटी किसकी होती है? पुरुष की, है ना। तो वो निर्णय ले सकते हैं, जिम्मेदारी ले सकते हैं, और परिवार का रक्षण करते हैं कि नहीं? कोई भी परिबल हो, कोई भी, है ना, कोई तंग कर रहा है बच्चों को, या कुछ भी आर्थिक कोई परेशानी है, या कोई सामाजिक या कोई कुटुंब में से कोई परेशानी है, तो कौन फेस करता है? स्त्रियां, पुरुष फेस करते हैं, जिम्मेदारी पुरुष लेता है ना। तो ये पुरुष की क्वालिटी है। अगर ये दोनों क्वालिटी दोनों पक्ष से नहीं होगी, दोनों पक्ष से नहीं होगी, तो घर गृहस्थी इतनी अच्छी नहीं चल पाए, है ना। समझ पा रहे हो? तो ये दोनों क्वालिटीज अगर हम में है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो ये डेवलप करनी है। समझ, दोनों पक्ष में ये डेवलप करनी है, जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करना है पुरुषों को। पुरुष अगर छुट्टी लेना चाहे तो भी नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि पगार कम आएगी, घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, स्कूल की फीस कैसे भरेंगे, सब कुछ है ना, उसका ये सब टेंशन है। स्त्रियों को क्या टेंशन है कि घर के कामकाज का ही टेंशन है, और कुछ है नहीं, लेकिन इस तरफ बहुत सारे टेंशन है। तो
इस पक्ष को क्या देखना है, सब कुछ बैलेंसिंग करना है, माता पिता और अपनी निजी जो गृहस्थी है दोनों को। कभी कभी क्या होता है कि माता पिता और पत्नी या बच्चों, उस दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और बीच में कौन पिसता है, ये। क्यों? क्योंकि नहीं अपनी पत्नी को कह सकता, नहीं अपने माता पिता को कह सकता, है ना। तो इसीलिए सबको, अगर हम सब दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं, कोलैबोरेशन करके अगर जीवन जिएंगे तो जीवन इतना सुंदर तरीके से निकलेगा। तो ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए हमें, है ना। स्त्री जब भी विवाह करके आती है ना, तो पुरुष उसका स्वीकार जैसे है वैसे करता है कि नहीं करता है। वैसे ही स्त्रियों का क्या कर्तव्य है कि जितना पुरुष का सामर्थ्य है वो कमाता है कि नहीं। क्यों कमाता है? अपने के लिए नहीं, सबके लिए। शास्त्र में अभी आगे आएगा, बताया है कि पुरुष जैसे तैसे करके, अगर पाप करके भी धन कमाता है, खाते हैं सब उसको, उस धन को सब लोग भुगते हैं, है ना। सबके लिए खर्चा होता है उस धन में से, लेकिन पाप कौन भुगतता है मालूम है? अकेला वो। पाप के भागीदार सब नहीं बनते, शास्त्र में लिखा है ना। तो इसीलिए स्त्रियों का कर्तव्य है कि जितना भी आमदनी है, जितना भी हमारा घर का इनकम है, उस हिसाब से हमको जी लेना है ना। क्योंकि अगर हम टॉर्चर करेंगे कि नहीं नहीं अभी तो इतने आपका जो इनकम है उसमें तो कुछ होता नहीं है। हर पुरुष की ख्वाहिश है कि अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छा जीवन दे। कौन ऐसा पुरुष नहीं होगा जो अपने परिवार को अच्छा जीवन नहीं देना चाहता है? होगा कोई, है ना। लेकिन सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, सबकी अपनी अपनी प्रारब्ध है। वरना सबको मुकेश अंबानी ही बनना है कि छोटा रहना है किसी को? सबको मुकेश अंबानी ही बनना है, सबको उतनी ही फैसिलिटी भुगतनी है। लेकिन सबकी अलग अलग प्रारब्ध है, हमारा अलग अलग कैपेसिटी है। तो जितना हमारा घर का इनकम है उस तरीके से हमको जी लेना है ना। जीना है, जी लेना नहीं, जीना है ना। भरपूर जी लेना है, ऐसा नहीं कि जीने के लिए जी लेना है ना। अगर ऐसा हम करेंगे तो क्या होगा, इस तरफ से आधी टेंशन तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, है ना। कि चलो जितना आ रहा है मैं कमाने का प्रयास तो करूंगा ही, लेकिन जितना आ रहा है उसमें मेरे घर वाले मुझसे संतुष्ट है। वरना क्या होगा मालूम है? अनुभव है कि वरना ऐसा होता है कि एक तो नौकरी धंधा का टेंशन, और इस कलयुग में, इस खास करके इस समय में इतनी कंपटीशन है धन कमाने के लिए। अगर हम बाहर निकले तो हमको पता चलेगा कि क्या क्या करना पड़ता है धन कमाने के लिए, है ना। तो उसकी टेंशन थोड़ी बहुत हल्की हो जाएगी, वो अपने धंधे में, अपने काम में वो ध्यान दे पाएगा। समझ पा रहे? तो इसीलिए दोनों तरफ से कर्तव्य है। पति का भी कर्तव्य है कि जितना हो सके, है ना, उतना अपने घर परिवार को संभाले, व्यवस्थित ऐसे मैनेजमेंट करे ताकि सब कुछ बैलेंसिंग रहे, है ना। और इसमें दोनों पक्षों की हेल्प करनी चाहिए, तब भी एकदम गृहस्थी अच्छी रहेगी, है ना। वरना तो क्या होगा मालूम है? जैसे हमारी कैपेसिटी है 25 किलो वजन उठाने की, और कोई हम पर 50 किलो वजन रख देगा और बोलेगा कि चलो इसको लेके चलो, और वो जो बोझा जब हम ढोते हैं वैसे ही हमारी जीवन कटेगा कि इतना बोझा लेके हम जीवन काटेंगे, है ना। तो इससे दोनों पक्षों से हमको समझना है कि दोनों के साथ कोलैबोरेशन, क्योंकि धन से कुछ ऐसा नहीं है कि धन से सुख आ जाएगा। समझ पा रहे हो? अगर धन से सुख आ जाता तो ये बड़े बड़े फिल्मी स्टार या बड़े बड़े उद्योगपति है, उसका डिवोर्स नहीं होता। होता क्या? आप सुनते हो या पढ़ते हो, देखते हो टीवी में कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
हो रहा है। आए दिन हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि इतना धनी लोग है तो डिवोर्स हो गया, उसकी वाइफ ने इतना वो धन मांगा उससे तो वो ने दे दिया, दे भी देता है कि चलो बला छोटी, है ना, होता है ना, वो दे भी देता है। लेकिन अगर एकदम कोलोब्रेशन से जब हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो धन कुछ मायने नहीं रखता, है ना। कितने परिवार ऐसे भी है, शाम को जितना भी मिलता है इकट्ठा होके, है ना, बांट बांट के और आनंद ले लेके खाते हैं, है ना। तो यही सुख है, यही आनंद है ना। वरना कितने ऐसे भी धनिक परिवार है कि वो महीने में एक बार भी अपने परिवार के साथ खाना नहीं खा पा रहा है। होते कि नहीं। हस्बैंड है वो बिजनेस के सिलसिले में दिनों दिनों तक बाहर रहता है, और यहाँ पे बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, किस कक्षा में पढ़ते हैं, कैसा पढ़ते हैं, वो भी उसको मालूम नहीं। ये है जीवन, है ना। ये अभी ऐसे भी जी रहे हो। लेकिन विवाह करने का क्या वास्तविक कारण, लक्ष्य यही है? बच्चे पैदा करना, खाना पीना सोना और ऐसे जीवन व्यतीत करना, यही लक्ष्य है क्या? नहीं, ये लक्ष्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब तो पशु भी करते हैं, पशु भी खाना खाते हैं, हमने सेमिनार में सुना, पशु भी खाते हैं, पशु भी बच्चे उत्पन्न करते हैं, पशु भी सोते हैं और पशु भी अपना रक्षण करते हैं, है ना। लेकिन गृहस्थ जीवन पाके हमको क्या करना है? तो यहाँ पे बतलाया गया है कि भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन इतना शक्तिशाली है कि इससे गृहस्थ भी उस चरम फल को सरलता से प्राप्त कर लेता है जो सन्यासियों को होता है। समझ पा रहे हो? सन्यासियों को जो फल प्राप्त मिलता है वही फल भक्ति से गृहस्थों को भी मिलता है। लेकिन फायदा क्या है मालूम है गृहस्थों को? सन्यासी को क्या दिक्कत होगी? खाना बनाने की, कपड़े धोने की, ये वो कैसे लाएंगे। लेकिन यहाँ गृहस्थ में फायदा है। क्या फायदा है? कि दोनों पक्ष एक दूसरे को सहयोग करेंगे भक्ति में आगे ले जाने के लिए। समझ पा रहे हो? अगर अकेला पुरुष होगा, उसको मंगला आरती जाना है तो क्या करना होगा? सुबह जगेगा, अपने आप वो पानी गर्म करेगा, नहाएगा, बाद में अपने कपड़े वो थोड़ा बहुत धोएगा, सुखाएगा, ये सब अपने आप करना होगा, है ना। तो ये जिम्मेदारी रहेगी उसको खाना पकाने की, ये सब। लेकिन वो विवाह कर लेगा तो आधे काम इस तरफ आ जाएंगे, कपड़े धोना, खाना पकाना, बच्चों की ये वो सब जिम्मेदारी। और अगर मान लो कि इस तरफ से कोई विवाह नहीं कर रहा है और अकेली जिम्मेदारी, अकेले रह रहा है, तो क्या करना होगा उसको? कपड़े धोना वो तो आता है, लेकिन धन कमाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, है ना। तो ये दोनों साइड से कोलैबोरेशन है। किस बात का? भक्ति में आगे बढ़ने की भागीदारी है। और हमारे शास्त्रों को देख लीजिए, कितने ऋषि मुनि ऐसे थे जिसने शादी नहीं की थी, सब मैरिड थे, लेकिन फिर भी वो मुनि कहलाते थे। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी वो एक सन्यासी की तरह दोनों इतनी सुंदर तरीके से भगवान की भक्ति करते थे, तो उसको भगवान की प्राप्ति होती थी, है ना। कितने नाम आप देख लीजिए, जितने भी ऋषि मुनि है सब मैरिड है, सबकी घर गृहस्थी थी, सबके संतान थे, है ना। लेकिन आगे हम देखेंगे कि संतान क्यों उत्पन्न करना है? अपने आनंद के लिए नहीं। शास्त्र क्या बताते हैं कि हाँ, यहाँ पे नारद मुनि, ये जो श्लोक है वो नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर को ये उपदेश देते गृहस्थ धर्म का, है ना। भागवतम में बहुत बहुत जगह पर भीष्म पितामह भी भीष्म पर्व में युधिष्ठिर महाराज को गृहस्थी के उपदेश देते हैं, यहाँ नारद मुनि भी दे रहे हैं। तो ये है गृहस्थ आश्रम का महत्व, कि जिस तरह किले का जो सेनापति होता है वो आक्रमणकारी लुटेरे को बहुत आसानी से जीत लेता है,
उसी तरह पत्नी का आश्रय लेकर मनुष्य उन इंद्रियों को जीत सकता है जो अन्य आश्रमों में अजेय होती है। समझ पा रहे हो? तो इसीलिए गृहस्थ आश्रम एक दूसरे की मदद करके भगवत प्राप्ति के लिए, नहीं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए, भोग भोगने के लिए नहीं है ना। शास्त्र हमें बताता है कि एक स्त्री पुरुष को कब संग करना चाहिए। तो शास्त्र में आदेश है गृहस्थियों के लिए कि जब कृष्ण भावना भावित संतान उत्पत्ति करनी है तब ही एक दूसरे का संग करना चाहिए, है ना, संतान प्राप्ति के लिए। और वो भी ऐसी वैसी नहीं, कृष्ण भावना भावित, यानी कि कृष्ण भक्त ऐसी संतान उत्पत्ति के लिए। वरना विवाहित जीवन में भी अनियंत्रित जातीय सुख वो पाप है। अनियंत्रित जातीय सुख वो पाप है। हमारे पास गाड़ी है, लाइसेंस मिल गया, तो ऐसा नहीं कि हमारे पास लाइसेंस है तो कैसे भी चलाएंगे, है ना। तो ये विवाह है, वो लाइसेंस है गृहस्थ जीवन के लिए, लेकिन कैसे भी नहीं जीना है, वो भी सिस्टम से, शास्त्रों के आदेश से जीना है। तो जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में आगे नहीं बढ़ सकता, उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं अपने संयम पे कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उसके लिए है गृहस्थ आश्रम, है ना। वरना क्या होगा, जबरन वो ब्रह्मचारी लाइफ को आगे बढ़ाएगा, उसका मन कुछ अलग गुण है, ब्रह्मचर्य आश्रम के गुण नहीं है, फिर भी वो आगे ले जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो गलत कार्य करेगा और वो उससे भी बड़ा पाप होगा। विवाहित जीवन के सिवाय का जो संग है वो बहुत बड़ा पाप है। इसलिए 4 नियम जो शास्त्रों ने मनुष्य को दिए हैं, उसमें एक नियम है पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन नहीं करना, है ना। तो ऐसे गृहस्थ लाइफ होती है। लेकिन अब बारी आती है कि जब लड़का लड़की पसंद करते हैं एक दूसरे को, तो पसंदगी कैसे करनी चाहिए, शास्त्र क्या बताता है और अभी क्या हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, अभी एंगेजमेंट की बात आएगी तो क्या होगा, पहले बायोडेटा आएगा। देखो देखो बायोडेटा आ गया, लड़की के फोन में लड़के का बायोडेटा आ गया, तो देखो कैसा है, खोलेंगे और देखेंगे कैसा है, अरे हैंडसम है, हैंडसम चलेगा, मेरी तरफ से हाँ है ना। और लड़के के फोन में अगर लड़की का बायोडेटा आता है तो क्या है, अरे वाह बहुत ही सुंदर है ना, एकदम गोरी गोरी है, ठीक है डन डन, अपनी तरफ से डन। अभी यही देखते हैं या और कुछ देखते हैं, उसका भूतकाल क्या रहा है, उसका वर्तमान क्या है, उसका भविष्य क्या होगा, कुछ देखते नहीं। धन है चलो दे दो, माता पिता क्या देखते हैं, धन देखकर दे देते हैं, है ना। धन है वो देखते हैं, लेकिन संस्कार है वो नहीं देखते, देखते हैं। तो अभी विवाह के पूर्व क्या देख के ये गृहस्थ धर्म के लिए किसी को चुनना चाहिए। हम किसी छोटी मोटी चीज भी अगर पसंद करते हैं ना, वो भी टोल मटोल के ऐसे वैसे करके और 1-2 बार वो करके वो हम लेते हैं, है ना। वो लेडीज लोग वो पानी का घड़ा लेने जाती है तो क्या करती है, टकोरे लगाती है, बाद में वो लेती है। ऐसा नहीं कि वो दुकान वाले ने दे दिया और लेके चले आए, लेकिन यहाँ कोई टटोलता नहीं है, टकोरा नहीं लगाता कि नहीं नहीं ये खरा है कि खोटा है। या तो दिखाव पे या सुंदरता के आधार पे पसंद कर लेते हैं। लेकिन क्या देखना है, तो यहाँ पे बताते हैं कि उसका भूतकाल, उसका वर्तमान काल और उसका भविष्य देखना। तो हमको मालूम पड़ेगा ये तो हम कैसे देखें, भविष्य कैसे देखेंगे, है ना।
तो उसकी बातों से पता चलेगा। फोटो आई, बायोडेटा आया, फिक्स हुआ कि चलो देखने चलते हैं, लड़के लड़की को एक दूसरे के घर पे देखने जाते हैं, तो थोड़ी सी बातचीत भी करते हैं लड़के लड़की अभी, ठीक है, थोड़ी सी 2-5 मिनट के लिए। तो बातचीत में अभी क्या हो रहा है, दोनों अपनी अपनी क्वालिटीज बताते हैं, अच्छे गुण बताते हैं, और वो भी बढ़ा चढ़ाकर। होता है कि नहीं, कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो इतना पगार है मेरा, और मेरी तो ऐसी ऐसी ये सब है ना, समाज में मेरा ऐसा ये है वो है, ये सब बताते हैं लड़के लड़कियां एक दूसरे को। अपने जो गुण है वो बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। ऐसा ही होता है ना, कोई भी लड़का या लड़की अपने अवगुण नहीं कहता, कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो बहुत गुस्सेल हूँ, कुछ भी ऐसा वैसा हो जाएगा ना तो मैं तो टूट पड़ूंगी, या मैं तो टूट पड़ूंगा, ऐसा कोई बताता है? नहीं बताता है। अपने अवगुण है वो प्रारंभिक अवस्था में नहीं बता रहे हैं, यही प्रॉब्लम है। अपने बारे में सब कुछ बता देना है ताकि सामने वाले व्यक्ति को मालूम पड़े कि मैं इसके साथ सहजीवन यानी कि जीवन बिता सकूंगा या नहीं। समझ पा रहे हो? हम जैसे है वैसे ही बता देना चाहिए। मान लो अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर हमने कुछ चीज ऑर्डर की, कितने मस्त मस्त फोटो दिखाते हैं कि नहीं वो उसमें, कि ऐसे चलेगा, इतनी बैटरी होगी, इतने टाइम चलेगी, ये वो। प्रोडक्ट मंगवा ली, आ गई, लेकिन उस फोटो में जैसी दिखाई थी वैसी उसकी क्वालिटी या रंग रूप नहीं होगा तो क्या होगा? हम क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे कि नहीं कर देंगे? क्यों? क्योंकि भाई जैसा दिखाया था वैसा नहीं है। अगर जैसा दिखाया था वैसा होता तो हम रिटर्न नहीं करते, है ना। तो यही यहाँ पर यही करना है कि हम जैसे है वैसे प्रेजेंट हो जाए कि ऐसे है, बराबर है। आपको अगर चलेगा तो ठीक है, हाँ अगर आपकी कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो बदलने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी तो ऐसे है। समझ पा रहे हो? तो आज संसार में इतने सारे डिवोर्स हो रहे हैं, उसका यही कारण है कि जो है वो नहीं प्रेजेंट करते, वो नहीं है वो बतलाते हैं। और आगे क्या होता है, शादी हो जाती है, चलो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बात कर दी है तो शादी हो जाती है। बाद में क्या होता है, सहजीवन स्टार्ट होता है, गृहस्थ लाइफ स्टार्ट होती है। बाद में एक दूसरे की जो खामियां हैं वो सामने आने लगती है, वो छुपती नहीं है ना, वो धीरे धीरे सामने आने लगती है। बाद में क्या होता है, आपने पहले तो नहीं बताया था, तो तुमने भी कहाँ पहले बताया था। होता है कि नहीं दोनों पक्षों से ऐसा, है ना। बाद में बात कहाँ तक चली जाती है, डिवोर्स तक चली जाती है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम जैसे है वैसे बता देना चाहिए कि ऐसे ऐसे है ना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर बता देंगे ना कि नहीं नहीं मैं तो बहुत गुस्से वाले हूँ, अरे वाह मैं भी बहुत गुस्से वाले हूँ, हम दोनों की बहुत चलेगी, ऐसा भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी खामियां बताएंगे तो नहीं होगा, है ना, ऐसा भी होगा, है ना। दोनों एक तरह से गुण वाले हैं तो उसकी बहुत जमती है ना। तो पहले की जो वैदिक पद्धति थी उसमें क्या देखा जाता था, उसका भूतकाल देखा जाता था। भूतकाल यानी कि कुंडली का मैचिंग, आगे उसका माइंड कैसा रहा होगा। वैदिक है ना, अभी लोगों को देखनी नहीं आती है इसलिए सब डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन पहले जो ज्योतिष शास्त्र था वो एकदम सटीक था, वो बता देता था, क्योंकि ये मनुष्य की कौन से गुण वाली योनि है। हम मनुष्य तो है, लेकिन फिर भी आप किसी ज्योतिष को जानते हो तो पूछना कि 3 गुण होते हैं हमें, एक है देवी गुण, एक है मनुष्य गुण और एक है राक्षसी गुण, है ना। तो अगर देवी गुण वाला लड़का और राक्षसी या अदर गुण वाली लड़की होगी तो उस दोनों का मिलान नहीं होगा। समझ पा रहे हो, ये भूतकाल की बात। तो ये करना चाहिए सटीक तरीके से। दूसरा है वर्तमान, अभी का स्टेटस क्या है। तो वर्तमान में क्या देखना चाहिए, तो सामाजिक यानी कि हमारे वर्ण का है कि नहीं,
यानी कि ब्राह्मण लड़का है तो ब्राह्मण लड़की चाहिए, है ना, वैश्य लड़का है तो वैश्य लड़की चाहिए। समझ पा रहे हो? आगे आएगा, अगर ये दोनों इनबैलेंस हुए हैं तो क्या करना चाहिए। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो कोई डरना नहीं है ना, उसका भी निवारण है। अगर ऐसा हो गया है तो क्या करें? तो वर्ण के आधार पर के समान वर्ण होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? समान सामाजिक स्टेटस होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि लड़का बहुत ऊंचे घराने का, ऊंचे घर का है और लड़की थोड़ा मिडिल क्लास की है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। क्यों? पहले हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो क्या करते थे? समान परिवार में शादियां करते थे, इसलिए निभा लेते थे सब, क्योंकि समान मेंटालिटी से, समान तरीके से उसका उछेर हुआ है ना, उसका स्वभाव ऐसा बन जाता। तो समान सामाजिक स्टेटस और समान आध्यात्मिक स्टेटस, है ना। लड़का है और उसको भगवान में कोई रुचि ही नहीं है और लड़की है वो भक्ति भाव वाले है, क्या होगा? या लड़की को कोई भक्ति भाव में रुचि नहीं है, लड़का भक्ति भाव वाला है, क्या होगा? इनबैलेंस होगा कि नहीं होगा ना। तो ये आध्यात्मिक स्टेटस भी देखना चाहिए कि आध्यात्मिकता में कैसे है, कैसी है। और आर्थिक भी देखना चाहिए कि घर बहुत जो अगर ऊंचा होगा लड़के का घर, तो लड़की वहां अनकंफर्ट महसूस करेगी। क्या होगा लड़की को? नहीं नहीं, मेरा मायका गरीब है इसलिए ये लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो भी उसको ऐसा महसूस होगा, है ना। या अगर लड़की बहुत ऊंचे घराने की है और लड़का बहुत नीचे घराने का है आर्थिक तौर से, तो यहाँ पर भी ऐसा इम्बैलेंस होगा। इसलिए समान आर्थिक स्तर पे विवाह होना चाहिए और समान शारीरिक लेवल भी होना चाहिए। शारीरिक, है ना, इस समान शारीरिक स्तर यानी उम्र का भी बहुत इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उम्र का बहुत इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा? मान लो लड़का या लड़की में 10-12 साल का डिफरेंस है तो क्या होगा? दोनों का नेचर, एक अभी मैच्योर हो गया है और एक अभी इनमेच्योर है, तो दोनों में मेल नहीं होगा, है ना। और शारीरिक समानता, है ना, लड़कों का वजन है 150 किलो और लड़की का वजन है 35-50 किलो, तो ये भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस सब तरीके से समानताएं देखनी चाहिए। समझ पा रहे हो आप? तो ये है वर्तमान स्टेटस। और भविष्य का क्या? तो भविष्य का कैसे मालूम पड़ेगा? पूछ के, है ना, एक दूसरे को बता के। मान लो पूछेंगे नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा कि भविष्य का इनका और इनका क्या प्लानिंग है। लड़की बताएगी कि नहीं नहीं मैं तो शादी के बाद अमेरिका सेटल होना चाहती हूँ, तो लड़के को मालूम पड़ेगा कि नहीं नहीं मैं ऐसा कर पाऊंगा क्या नहीं। समझ पा रहे हो? तो ये सब भविष्य का प्लानिंग भी, मेरी सोच भविष्य के लिए क्या है वो भी एक दूसरे के साथ एकदम प्रामाणिकता से शेयर करनी है ना, शादी के पहले। तो इसको बोला जाता है टकोरे लगाना, यानी कि टोल मटोल के देखना कि हम दोनों का तालमेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि शास्त्र में कभी अनुमति नहीं है डिवोर्स के लिए। शास्त्र में डिवोर्स यानी कि हमारी भाषा में कहते छूटाछेड़ा, એવો કોઈ શબ્દ જ નથી। શાસ્ત્રમાં ક્યારે અનુમતિ આપવામાં આવી નથી દાંપત્ય જીવનમાંથી એકબીજાથી અલગ થવા માટે। અત્યારે આ બધા થઈ જાય છે, વિદેશી સંસ્કૃતિ છે અને આપણે એને અપનાવી રહ્યા છીએ એટલે। બાકી જો આગળ બતાવેલા પ્રમાણે જો પુરુષોના ગુણ અને સ્ત્રીઓના ગુણ હોય અને કદાચ એવું ન હોય, ક્યારેક કોઈમાં ઉતાર ચઢાવ પણ હોય, પણ જો એડજસ્ટ કરી લઈએ તો જીવન બહુ સારી રીતે વ્યતીત થઈ શકે છે। બીજાની કમ્પેરિઝન નહીં કરી, હે ને, બીજાની કમ્પેરિઝન કરીએ કે નહીં નહીં જો પેલાની વાઈફ તો જો કેટલી સુંદર છે, ન કરવી જોઈએ। આપણા પ્રારબ્ધમાં જે હતું ને એ આપણને મળ્યું છે। અથવા એવું પણ નહીં કે નહીં જો
પેલો તો જો મોટી ગાડી લેવો, બંગલો બનાવ્યો, અને અમારા હસબન્ડ તો હજી કાંઈ ઉકાળી નથી રહ્યા. તો એવું પણ નહીં. આપણને જે પાત્ર મળ્યું છે ભગવત ઈચ્છાથી મળ્યું છે અને ભગવાનની કૃપાથી મળ્યું છે. બાકી ઘણા બધા એવા લોકો આટા મારે છે કે જેને જીવન સાથી મળ્યો નથી. અને કહે છે કે દુનિયામાં જો કોઈ સૌથી સારો મિત્ર હોય ને કોઈ વ્યક્તિ માટે, તો એ એક સ્ત્રી માટેનો પતિ છે ને એક પુરુષ માટેની પત્ની છે. સૌથી સારો મિત્ર. એટલા માટે આ ભાગીદારીને એકદમ દ્રઢતાથી આગળ વધારવી જોઈએ, જેથી કરીને જીવન કેવી રીતે ચાલ્યું જશે ને પછી કાંઈ ઘટશે નહીં. શું ઘટશે? જિંદગી જ ઘટશે, એને બીજું કાંઈ ઘટશે નહીં. આ નથી, પેલું નથી, બીજું નથી, કાંઈ ઘટશે નહીં. બાજુવાળાની પત્ની ગમે એટલી સુંદર હોય, બરોબર, એ આપણા ઘરનું કામ કરશે, એ આપણા પગ દબાવશે નહીં, બરોબર છે. અને બાજુવાળાના બંગલા ગમે એટલા સારા હોય, એ આપણા ઉપયોગમાં લઈ શકાશે. પણ મને જે મળ્યું છે એ ભગવાનની સર્વશ્રેષ્ઠ કૃપા છે મારા ઉપર, એવું સમજીને ગૃહસ્થ લાઈફમાં આગળ વધવું. તો શાસ્ત્ર કહે છે કે પતિ પત્ની પ્રેમ से साथ रहने का लाभ, पति અને પત્ની જો અગર પ્રેમથી સાથે રહે છે તેનો લાભ શું છે? जिस घर में पति से पत्नी और पत्नी से पति संतुष्ट रहते हैं वहां पग पग पर कल्याण की प्राप्ति होती है. એકબીજાથી જો સંતોષથી રહીએ છીએ ને આપણે, તો કદમ કદમ ઉપર આપણને કલ્યાણ એટલે કે મંગળ આપણું લાભ થાય છે. અને माता पिता का पालन करना गृहस्थ व्यक्ति का कर्तव्य है, जैसे भी हो. माता पिता, क्योंकि हम भी माता पिता ही है. आज वो बुजुर्ग यानी कि वो आज वृद्ध बने हैं, हम भी वृद्ध बनेंगे. समझ पा रहे हो? तो जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे, और अगर नहीं भी पाएंगे तो अभी तो बो तो लो, है ना. जैसे भी माता पिता है, हमको क्या समझ के सेवा करनी है कि अगर वो फल नहीं देंगे तो भगवान तो इसका फल देंगे ही, है ना. और बहुत भाग्यशाली लोग हैं, उसके भाग्य में लिखा है माता पिता की सेवा कर. समझ पा रहे हो? माता पिता यानी कि सास ससुर भी माता पिता ही है, इस पक्ष में और इस पक्ष में, है ना. इस पक्ष के ऐसा नहीं है कि नहीं मेरी वाइफ के माता पिता वो तो मेरे सास ससुर है, नहीं, वो भी माता पिता ही है. उसकी भी सेवा अगर उसको जरूरत पड़े तो उसकी भी सेवा हमको करनी चाहिए, है ना. क्यों? क्योंकि हमारी वाइफ मेरे माता पिता की सेवा कर रही है कि नहीं, तो हमारा भी कर्तव्य दोनों पक्ष से है, ये एक पक्ष से नहीं है. लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि लड़कियां अपने सास ससुर की सेवा करती है, लेकिन लड़के अपने सास ससुर की सेवा नहीं करते हैं, है ना. तो जरूरत पड़े तो हमको भी हेल्प करनी चाहिए, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा. तो यहाँ पे आगे बताते हैं कि जो गृहस्थ होकर भी बूढ़े माता पिता का पालन नहीं करता वह पुत्र नरक में जाता. कहाँ जाता है? नरक में जाता, अगर बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं करता. क्यों करनी चाहिए मालूम है? सबसे पहले तो हमको जीवन किसने दिया? उसने दिया, है ना. हमको बड़ा किसने किया? उसी ने किया. हमको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, हमको बोलना सिखाया, समाज में रहना सिखाया, जीना सिखाया. उसी के माध्यम से ही हम सीखे. आज चाहे उसका स्वभाव कुछ हमारे प्रति अच्छा है नहीं है, कुछ मनमुटाव है नहीं है, लेकिन उसको जरूरत है तो हमको निश्चित सेवा करनी है, क्योंकि हमारी भी सेवा उन्होंने की है. जब हम छोटे थे तो रात में रोते थे तो वो जगते थे, है ना. वो साफ सफाई करते थे, वो खिलाते पिलाते. इसलिए तो नारद मुनि कहते हैं कि जो लोग घर पर गृहस्थ बन के रहते हैं उन्हें अपनी जीविका अर्जित करने के लिए कार्य करना चाहिए और अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने का प्रयास न करके इस फलों को वासुदेव कृष्ण को अर्पित करना चाहिए. इस जीवन में वासुदेव को जिस तरह प्रसन्न किया जाए इसे
भगवत भक्तों की संगति के माध्यम से भली भांति सीखा जा सकता है। कैसे? हमारे द्वारा अर्जित किया हुआ सब कुछ भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हमारे द्वारा अर्जित किया हुआ सब कुछ यानी कि हम जिस स्त्री को पत्नी बना के लाए हैं उसको भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, है ना, मंदिर मार्जन में या कुछ खाना पकाने के लिए या कुछ डेकोरेशन में या ऐसा। और हम कुछ धन अर्जित करते हैं तो उसको भी भगवान की सेवा के लिए अर्पित करना चाहिए। हम संतान प्राप्ति करते हैं तो उसको भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो यहाँ नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि घर गृहस्थी में कैसे जीना है और इसी से ही वास्तविक सुख मिलेगा। ये जो आध्यात्मिक क्रिया है ना वही वास्तविक सुख देने वाली है और कोई चीज हमको सुख नहीं देगी। समझ पा रहे हो? क्यों? भागवतम में एक श्लोक में लिखा गया है कि अगर एक पुरुष को सारी दुनिया की स्त्रियां उपलब्ध हो जाए भोगने के लिए तो भी वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। और वैसे ही एक स्त्री को अगर सारे दुनिया के पुरुष उपलब्ध हो जाए तो वो भी कभी संतुष्ट उसको भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसमें ये जो दुनियादारी है, घर गृहस्थी यानी कि स्त्री, पुत्र, पैसा, धन, पद, प्रतिष्ठा, उसमें वास्तविक सुख नहीं है ना। तो कहाँ पे है? तो जीवों के लिए जीवन का वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक सुख का है। आध्यात्मिक सुख यानी कि भगवान की सेवा, मंदिर आना, सत्संग करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, है ना, ये सब जो आध्यात्मिक सुख है, आध्यात्मिक क्रिया है, उसी में ही सुख है और कहीं सुख नहीं है। और यही असली सुख है। यह सुख तभी प्राप्त किया जा सकता है जब मनुष्य सारे भौतिकतावादी कार्यकलापों को बंद कर दे। क्या बोलते हैं कि બધા જ આપણા ભૌતિક जो કાર્યકલાપો છે એ બંધ કરી દઈએ અને ભગવાનની સેવામાં લાગીએ। તો શું કરવું જોઈએ? અહીંયા પ્રભુજીઓ બધા કામ ધંધો બંધ કરીને અહીંયા મંદિરમાં, માતાજી હોય તે બધું ઘર કામ છોડીને મંદિરમાં નહીં, એવી રીતે નથી કહેતા। અહીંયા ભૌતિક કાર્યકલાપ यानी कि जो આપણે કહીએ ને કે વધારાના જે કાર્યકલાપો છે, આપણી ભાષામાં કહીએ તો જે વધારાની જે ક્રિયાઓ છે, વધારાના જે આપણે ઊભા કરીને ચાલીએ છીએ આપણી જાતે, એ બધું બંધ કરીને ભગવત સેવામાં લાગવું જોઈએ। એમાંથી જ સાચું સુખ પ્રાપ્ત થશે, બીજી કોઈ ક્રિયામાંથી સાચું સુખ પ્રાપ્ત થશે નહીં, હે ને। કારણ કે ઇન્દ્રિય ભોગ ભોગવવા માટે પણ આપણી અમુક કેપેસિટી છે। આપણે પૂર્ણ રીતે આ બધા ભોગ પૂર્ણ રીતે ખાઈ નથી શકતા, પૂર્ણ રીતે જેટલું આપણે ઊંઘવું એટલું ઊંઘી નથી શકતા। સમજાય છે? હાથી કેટલું ખાય, હે ને, તન મોઢે ખાય, પણ આપણે કેટલું ખાઈ શકીએ? કદાચ ગમે એટલું ભાવતું હોય તો પણ જેટલું પેટમાં છે ને જગ્યા એટલું જ આપણે ખાઈ શકીએ, એનાથી વધારે ખાઈ શકીએ નહીં। જ્યારે સામે ડીશ આવે ને, ગુલાબ જાંબુ બહુ ભાવે, પીઝા બહુ ભાવે, હે ને, તો જ્યારે સામે ડીશ આવે ત્યારે આપણને શું થાય? 4 પીઝા તો આજ ખાઈ જ જવા આખા। ખાઈ કે નહીં? ખાઈએ કાંઈ છે? નથી ખાઈએ દાદા। આપણી ઈચ્છા કેટલી છે? બહુ બધી, પણ ઈચ્છા પ્રમાણે આપણી ઇન્દ્રિય આપણે એ પ્રમાણે કરી શકતા નથી। तो कहे छे कि स्त्रीओ शू छे? तो कि भार्या यानी कि पत्नी पुरुष का आधा अंग है ना, पुरुष का आधा अंग है। भार्या उसका सबसे उत्तम मित्र है। जो अहींया मैं हमणां वात करी ने कि पत्नी और पति सौथी उत्तम मित्र छे। महाभारतनो आदि पर्वनो आ श्लोक छे। दुष्यंत राजा अने शकुंतला है ने एनो संवाद छे। जे बे पति पत्नी हता ई बंने वच्चे संवाद चाली रह्यो छे, एना अंतर्गत आ श्लोक छे। भार्या धर्म अर्थ अने काम का मूल है। पत्नी शुं छे? धर्म अर्थ अने काम एनु मूल पत्नी छे अथवा पति छे। एटले कहेवानो मतलब के धर्म अर्थ काम मोक्ष
જો આપણે પ્રાપ્ત કરવા હોય તો કોના સહયોગથી પ્રાપ્ત થશે? પતિ અથવા પત્નીના સહયોગથી આ ચારેય પુરુષાર્થ આપણને પ્રાપ્ત થશે, है ना। तो इसीलिए संसार सागर से तरने की इच्छा वाले पुरुष और स्त्रियों के लिए पति और पत्नी ही प्रमुख साधन है। શું કહે છે કે જેને આ સંસારમાંથી તરી જવાની ઈચ્છા છે કે હવે પછી મારે જન્મ નથી લેવો, ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી લેવી છે, એવી જેને ઈચ્છા છે એની માટે સૌથી બેસ્ટમાં બેસ્ટ સાધન છે એનો પતિ અથવા એની પત્ની, है ना। આપણી માટે સૌથી અમૂલ્ય સાધન છે ભગવત પ્રાપ્તિ માટે પતિ અથવા પત્ની, है ना। પણ આપણે શું કરીએ છીએ? એકબીજાને આ સ્તરે આપણે સમજી શકતા નથી અથવા નિગ્લેક્ટ કરીએ છીએ। શા માટે? કારણ કે આપણે આધ્યાત્મ માર્ગે આપણે એટલી બધી પ્રગતિ નથી કરી। જ્યારે આપણે ઘર ગૃહસ્થીની સાથે સાથે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં પણ આગળ વધશું તો આપણને આ બધી વસ્તુ સમજાશે અને જીવન એટલું સુંદર બનશે કે જેની આપણને કલ્પના પણ નહીં હોય। આપણને આજે ભલે આપણું જીવન ગમે એટલું કઠોર લાગતું હોય કે નહીં આયા તો થાકી ગયા ગૃહસ્થીમાં આ કરવું પડે તે, પણ એક વખત જો આધ્યાત્મિક માર્ગમાં ચડીને આ બધી વસ્તુ સમજીને જો એ પ્રમાણે જીવન જીવશું ને તો જીવન એટલું આસાન નહીં, એટલું આનંદદાયક લાગશે। આપણને એમ લાગશે કે આ જીવન ચાલ્યા જ કરે, ખતમ જ ના થાય, હે ને, એવું લાગશે। અને ઘણા બધા ભક્તોના એવા અનુભવ છે કે એના એ જ પતિ પત્ની છે કે જ્યારે આધ્યાત્મમાં નહોતા આવ્યા ત્યારે એટલા ઝઘડા, એટલા કંકાસ, અને જ્યારે ભક્તિ માર્ગમાં આવ્યા પછી એટલો આનંદ, એના એ જ પતિ પત્ની છે, એનું જ ઘર છે અને એની એ જ આર્થિક પોઝિશન છે, છતાં પણ એટલા સુંદર જીવન અત્યારે જીવે છે ભક્તો। અને આ પછી કઈ ખાલી આમ તમને સારું લગાડવાનું એવું નથી, તમે આ ટ્રાય કરી શકો છો। તમે પોતાના જીવનમાં ટ્રાય કરીને જુઓ ને, આમાં કઈ ખર્ચો તો છે નહીં ને કે ચાલો શાસ્ત્ર પ્રમાણે આ રીતે એકબીજાને સમજીને એકબીજાને મદદ કરીને જીવન જીવી જોઈએ, આમાં કઈ ખર્ચો તો નથી, એકવાર ટ્રાય કરી જોઈએ, હે ને। તો કે અહીંયા તો બધા ભક્તો જ છે એટલે ભક્તોના જીવનમાં આવી કઈ પ્રોબ્લેમો નહીં હોય, પણ આ તો અહીંયા ગૃહસ્થ ધર્મ વિશે જે આવતું હતું એટલા માટે આ શ્લોક મેં લીધા છે। तो गृहस्थ और निवृत्त दोनों लोगों के लिए भक्ति जरूरी है। भक्ति બધા માટે જરૂરી છે, ચાહે ગૃહસ્થ હોય, બ્રહ્મચારી હોય, બાળક હોય કે વૃદ્ધ હોય, બધા માટે ભક્તિ કરવી જરૂરી છે। કોણ કહે છે? પરાशर ऋषि કહે છે मैत्रेय मुनि ने कि जो गृहस्थ इस प्रकार से अपने धर्म का पूर्ण रूप से पालन करता है वह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। બધા બંધનોથી મુક્ત છે। આપણે હમણાં વાત કરી ને કે નહીં, ગૃહસ્થ જીવનમાં પતિ અને પત્ની બંને સ્વતંત્ર પણ છે અને બંને બંધન પણ છે, પણ આપણો જે સમાજ છે કેવો છે? પુરુષ પ્રધાન સમાજ છે। પુરુષ એવું માને છે કે મારા દરેક સવાલોના જવાબ મારી પત્નીએ આપવા જોઈએ, પણ એવું નથી માનતો કે નહીં મારી પત્નીના સવાલોના જવાબ પણ મારે દેવા જોઈએ। શું છે? પોતાની પત્નીના સવાલોના જવાબ પણ પુરુષોએ દેવા જોઈએ। આપણને એમ થાય કે રાતે 2 વાગે આવ્યા અને પત્ની પૂછે ક્યાં ગયા હતા અત્યાર સુધી, એ બધો વહીવટ તારે નથી કરવાનો। શું કે પુરુષો એમ જ કહે ને, ये सब तुमको नहीं देखना है, उसी को ही देखना है ना, ये रात को 2-2 बजे तक कहाँ जाते हैं, उसी को ही देखना है और किसको देखना है। तो हमको जवाब देना चाहिए अगर योग्य सवाल है तो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम पुरुष है तो नहीं हमको कुछ जवाब नहीं देना है, हम भी बंधन में ही है उनके, और ये भी हमारे बंधन में ही है, और दोनों तरफ से स्वतंत्रता भी है, लेकिन वो स्वतंत्रता स्वच्छंदता न बन जाए वो देखना है। समझ पा रहे हो? स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दोनों अलग है ना। तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग वो है स्वच्छंदता। एक दूसरे पर भरोसा किया है तो वो भरोसा नहीं तोड़ना है, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी उसमें, है ना। इसी से ही एक दूसरे की वफादारी से ही
ये गृहस्थ जीवन दृढ़ बनेगा, है ना। और उसी में ही सुख है, उसी में ही सुख है। एक दूसरे के अधीन रहने में ही आनंद है। समझ पा रहे हो? एक दूसरे से स्वतंत्र होना आनंद नहीं है ना। तो अधीन होना आनंद है, स्वतंत्र होना आनंद नहीं है। शास्त्र बताते हैं, ये कोई मेरी कही सुनी बात नहीं है, लेकिन शास्त्र की वाणी है। तो जो प्रतिदिन मुझ गोविंद का कीर्तन और पूजन करते हैं, गृहस्थ आश्रम में निवास करता है, वह सभी प्रकार के पापों से तर जाता है। कौन कहता है? भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि जो गृहस्थी में रह के दोनों जो मेरा भजन करते हैं, है ना, मेरा कीर्तन करते हैं, मेरी सेवा पूजा करते हैं, वो क्या होगा? उसको उसके सभी पापों, सभी कष्टों का नाश हो जाएगा, है ना। और हो ही जाता है ना, दुखों का नाश हो जाएगा। और पुरुष के दुख का नाश करने वाली 5 चीज क्या है? पुरुष का जो दुख है उसका नाश करने वाली 5 चीज है अनुकूल पुत्र। अगर कोई पुत्र अनुकूल है तो वो पुरुष के दुखों का नाश करता है। अर्थकारी विद्या, अर्थकारी विद्या यानी कि जो भी ज्ञान लिया है वो समझ के और संस्कार के साथ, शास्त्रों के साथ लिया है, ऐसी विद्या वो पुरुष का दुखों का नाश करने वाली। वरना क्या होगा? विद्या तो ली है लेकिन संस्कार नहीं लिया, तो वो विद्या का उपयोग पाप प्रवृत्ति में लगाएगा, है ना। और तीसरा है आरोग्य। हमको अपना शरीर का भी केयर करना है, क्योंकि ये शरीर ही साधन है भगवान की भक्ति करने के लिए, है ना। तो हमको अपने शरीर का भी केयर करना है, आरोग्य। और आगे है सत्संगति। सत्संगति यानी कि सत लोगों का, है ना, यानी कि अच्छे लोगों की संगति करना, बुरे लोगों की नहीं, है ना, सत्संगति करना। और तथा मनो अनुकूल वशवर्तिनी पत्नी। क्योंकि इसे मनो अनुकूल, मन को जो अनुकूल है ऐसी वशवर्तिनी पत्नी, ये 5 अगर कोई पुरुष के जीवन में है तो वो पुरुष अभी के घोर कलयुग में भी सबसे भाग्यशाली पुरुष है, अगर ये 5 चीजें उसके जीवन में है। देखो यहाँ शास्त्र ये नहीं बताते हैं कि जो पुरुष धनवान है, जो पुरुष के पास बहुत संपत्ति है, बहुत धन है, बहुत यश है, बहुत कीर्ति है, बहुत बड़ा पद है, वो भाग्यशाली है, ऐसा नहीं बताया। यहाँ क्या बताया है कि उसके मन को अनुकूल अगर पत्नी है तो वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। मन को अनुकूल, मन को अनुकूल यानी कि जो पत्नी अपने पति का मन का जो भाव है वो उसको समझ में आ जाए, बोल के नहीं, मन के भाव को समझने से ही अनुकूल हो जाती है, वो पुरुष संसार में बहुत बड़ा भाग्यशाली है। और वैसे ही वो स्त्री भी बहुत भाग्यशाली है जिसको ऐसे पति मिले, है ना। तो क्या करना है हमको? ऐसे पति या ऐसी पत्नी ढूंढनी है ना। क्या करना है? हाँ, हमें ऐसा बनना है ना। समझ पा रहे हो? हमें ऐसा हो जाना है। क्या होता है? हमें ऐसा हो जाना है, यही सीखना है हमको गृहस्थ जीवन से, ऋषि मुनियों के चरित्रों से यही सीखना है कि वो लोग कैसा जीवन जी गए, है ना। तो अब 1-2 मिनट है, 5 मिनट। गृहस्थ के सात्विक गुण, गृहस्थों के अंदर कौन से गुण होने चाहिए? तो अपनी संपत्ति का शास्त्र अनुसार यथा योग्य सदा विभाग करने वाला, ऐसा गृहस्थ होना चाहिए। क्षमावान, क्षमाशील होना चाहिए। एक दूसरे की गलती हो गई है तो एक दूसरे को क्षमा दे देना है कि चलो कोई बात नहीं, क्षमा, है ना। और दया युक्त, दया होनी चाहिए, कम से कम अपने परिवार वालों के ऊपर तो होनी ही चाहिए ना। बाहर
तो देखेंगे आगे। लेकिन घर गृहस्थी में तो दया होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं पिछली बार तुम मेरे पापा के यहाँ जो प्रसंग था उसमें नहीं आए थे, मैं तो वहां आऊंगी नहीं तुम्हारे यहाँ। ऐसा नहीं, दया दिखानी चाहिए, क्षमा, उस टाइम की पोजीशन देखनी चाहिए कि क्या था क्या नहीं था। ऐसा नहीं कि नहीं तुम नहीं आए थे तो मैं भी नहीं आऊंगी, चलो, ऐसा भी नहीं है ना। एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना है। और केवल गृह में रहने से कोई गृहस्थ नहीं कहलाता। ये सब गुण होंगे तो गृहस्थ है, वरना कोई गृहस्थ नहीं कहलाता। गृहस्थ भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते गृहस्थ और एक होते गृहमेधी, है ना। गृहस्थ और गृहमेधी, चलो देखते हैं गृहस्थ और गृहमेधी के क्या क्या लक्षण है। गृहस्थ होते हैं ना, गृहस्थ, वो गृहमेधी जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत देर तक सोते हैं, 9 बजे 10 बजे, कभी कभी 12 बजे, है ना। कभी कभी सुबह का नाश्ता 3-4 बजे होता है ना। तो ये है गृहमेधी। और गृहस्थ किसको कहते हैं, वो जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं और जग के क्या करते हैं, टीवी देखते हैं नहीं, क्या करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, है ना। भगवान की सेवा पूजा करते हैं, है ना, ब्रह्म मुहूर्त में। दूसरा है बाहर का खाना खाते हैं, कहीं पर भी गए तो कहीं पर भी खा लिया, ये है गृहमेधी। गृहस्थ क्या करते हैं, भगवान को भोग लगा के ही खाते हैं। कहीं पर भी हम गए अगर ट्रैवलिंग करते हैं तो क्या करेंगे, कुछ भी फ्रूट फल दूध आदि लिया, भगवान को भोग लगाया और बाद में खाएंगे, है ना। और बिना कांदा लहसुन के, बगैर का, है ना। कांदा लहसुन नहीं आना चाहिए उस भोजन में, है ना। और मांस मदिरा मटन अंडे आदि तो नहीं ही, लेकिन कांदा लहसुन भी नहीं। और तीसरा, सैलरी आई, क्या करेंगे, चलो शॉपिंग करने जाए, कपड़े लेंगे, मोबाइल खरीदेंगे, ये वो, यानी कि इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग के साधन खरीदना, ये है गृहमेधी का कार्य। और गृहस्थ का कार्य क्या होगा, चलो सैलरी आई तो भगवान की सेवा करेंगे, कुछ भक्तों की सेवा करेंगे, वैष्णव की सेवा करेंगे, है ना। इसमें अपना धन अर्जित करेंगे। आज भी बहुत ऐसा एक प्रसंग है, मैं लास्ट में बताऊंगा। और चौथा है इंद्रिय तृप्ति में ही रत रहेंगे, कोई भी कार्य करेंगे इंद्रिय तृप्ति के लिए। खाना खाएंगे तो जीभ के टेस्ट के लिए, है ना। स्पर्श करेंगे तो अपनी भोग वासना के लिए, है ना। तो कोई भी कार्य इंद्रिय तृप्ति के लिए ही करेंगे। और यहाँ गृहस्थ में क्या होगा, तो वो बोलते हैं कि संयमी जीवन जिएंगे, पति पत्नी क्या बोलेंगे, एकदम संयमी जीवन जिएंगे और भगवान की सेवा में रत रहेंगे, अपना सब कार्य भगवान की सेवा के लिए अर्पित करेंगे। और पांचवा है गृहमेधी, कोई खुशी होगी तो क्या करेंगे, पार्टी बार्टी करेंगे, है ना। और वो कोई गाना है ना, 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। और जो गृहस्थ है वो 4 बजे क्या करता है, सुबह में मंगला आरती आता है, उसकी पार्टी है, वो भी पार्टी करता है। गृहस्थ लोग भी पार्टी करते हैं, हम भी नेक्स्ट नहीं और नेक्स्ट संडे पार्टी करने वाले हैं फार्म में जाके, गृहस्थ लोग, भक्त लोग। लेकिन उसकी पार्टी और जो गृहमेधी है उसकी पार्टी में बहुत अंतर होता है। उसकी पार्टी में क्या होता है, रॉक म्यूजिक बज रहा है, विदेशी गाने चल रहे हैं, और ये सब प्याज लहसुन अंडे वाला खाना खा रहे हैं, मांस मदिरा, है ना। और ये सब हो रहा है ना, डिस्को लाइटिंग वाइटिंग, ये वो, ये है गृहमेधी। और यहाँ भक्त लोगों की पार्टी क्या हो रहा है, तो भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा है ना। सब लोग नाच रहे, नाच तो यहाँ भी रहे और यहाँ भी नाच रहे, लेकिन यहाँ भगवान के नाम के कीर्तन में नाच रहे, हाथ खड़े कर करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर ये लोग भी खाना खा रहे हैं और यहाँ ये लोग भी प्रसाद ले रहे हैं, बहुत अच्छे से अच्छा प्रसाद, है ना। हम जाएंगे तो 4 टाइम के लिए हमारे प्रसाद है, शनिवार की रात को, सोमवार की रविवार की सुबह, दोपहर और शाम, 4 टाइम हम
एकदम जमकर प्रसाद लेंगे, कीर्तन भी होगा, है ना, क्विज भी होगी, गेम भी खेलेंगे, है ना, आध्यात्मिक गेम, है ना, और स्विमिंग भी है ना, सब तरीके से एंजॉय है, लेकिन गृह मेधी की तरह नहीं, लेकिन गृहस्थ की तरह, है ना। गृहस्थ के कार्यकलाप बहुत ही सुंदर और शिष्ट होते हैं। शिष्ट यानी कि एकदम अच्छी तरीके से करते हैं, है ना। तो ये है गृहस्थ और गृह मेधी, है ना। तो इस तरीके से अगर हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो भागवतम में बहुत सुंदर दाम्पत्य जीवन जो कर्दम मुनि और मनु शत्रुपा की जो पुत्री है देवहूति, उसका जो दाम्पत्य जीवन है उसका हम लेंगे आगे, कभी टाइम मिलेगा तो बहुत ही सुंदर उसका जीवन है। एक ऋषि मुनि के साथ इतनी सुंदर कन्या बिहाई गई है कि जो कन्या को प्राप्त करने के लिए देवताओं गंधर्वों वो लालायित है कि ये जो देवहूति इतनी सुंदर कन्या थी कि वो जब छोटी थी, छोटा सा प्रसंग लेंगे, छोटी यानी कि युवा अवस्था में प्रवेश कर रही थी, तब वो गेंद से खेलते खेलते वो कक्ष से वो बाहर आ गई अपने कक्ष से, तो गांधर्वों ने उसको देख लिया, तो गांधर्व मूर्छित हो गए उसकी सुंदरता देखकर और जमीन पे आकर गिर पड़े, इतनी वो सुंदर थी। और वो सुंदर कन्या किसी राजा महाराजा के साथ नहीं बिहाई गई, किसके साथ बिहाई गई? उसके पिता ने क्या निर्णय लिया कि उसको कर्दम मुनि के साथ बिहाया गया। मुनि ऋषि यानी कि ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने वाला त्यागी, है ना, कठोर व्रत तप करने वाला, उसके साथ उसका ब्याह, और फिर भी उसका दाम्पत्य जीवन इतना मधुर रहा। देवहूति को इच्छा थी कि मैं एक पुत्र की प्राप्ति करूं, जो हर स्त्री को होता है ना। लेकिन कर्दम ऋषि क्या करते थे? साधना करते थे, जब एकदम कठोर साधना में लीन थे। तो फिर भी इन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि ये मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहे तो मैं भी उसकी हेल्प नहीं करूंगा, नहीं। उन्होंने देवहूति ने इतनी सेवा की, हम अगर डिटेल से कभी पढ़ेंगे, आज मैं शॉर्ट में कहता हूँ, इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि उसका शरीर जो इतना सुंदर था वो इतना कृष्ण बन गया, इतना इतना वो हो गया, इतना दुबला पतला हो गया, इतनी उसने अपनी पति की सेवा की। बोलो, उसने अपनी इच्छा नहीं देखी, उतनी उसके पति की उसने सेवा की। और बाद में जब उसके पति जब साधना से जगते हैं, तब उसने देखा कि ओहो, ये मेरी पत्नी कितनी मेरी सेवा करती है, वो भी एकदम वो हो गए भाव विभोर, और उसको बोला कि तुमने मेरी बहुत ही सेवा की है, बहुत ही अच्छी तरीके से सेवा की है, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि भगवान ने मुझको तुम्हारी प्राप्ति करवाई, है ना। और बाद में अपने योग बल, अपनी तपस्या के बल से उसको पहले जैसा था वैसा कर दिया। और बाद में वो दोनों विहार करने के लिए निकले अपने निजी विमान को लेकर। बहुत सुंदर कथा है, और उसका दाम्पत्य जीवन बहुत ही देखने लायक, हमारे लिए एकदम सुनने लायक है, हर गृहस्थी को ये सुनने लायक है ना। तो आज इतना ही हम लेंगे, बाद में आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अथवा किसी को कुछ कहना है तो आप कह भी सकते हैं।